اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر 2023 میں کارکنوں کی ترسیلات زر قیمت میں 2.4 ارب ڈالر کی رقم آئی۔ دسمبر 2023 کے دوران ترسیلات زر میں گزشتہ ماہ کی نسبت 5.4% کا اضافہ ہوا، جبکہ گزشتہ سال کی نسبت یہ اضافہ 13.4% ہوا۔ مالی سال 2023-24 کی ابتدائی 6 ماہ میں مجموعی ترسیلات زر 13.4 ارب ڈالرز موصول ہوئیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے پاکستان آئی ہیں۔ اور ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ کاروبار کے آغاز پہ 100 انڈیکس میں 339 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 64,319 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف الیکشن ٹرائیبونلز میں اپیلوں پر سماعت کا آج آخری دن ہے۔ الیکشن کمیشن نظر ثانی شدہ فہرستیں کل جاری کرے گا۔ الیکشن کمیشن کی اہلکار پولنگ اسٹیشنز کی ابتدائی فہرست پر ووٹر اور امیدوار اعتراض یا تجویز کل تک جمع کرا سکتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق ضلع ریٹرننگ آفیسران ان اعتراضات اور تجاویز پر 12 سے 17 جنوری کے دوران فیصلے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے 15 روز قبل پولنگ اسٹیشنز کی حتمی فہرست آویزہ کر دی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں آئندہ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی منظوری اور مسترد کرنے کے ریٹرننگ آفیسر کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کا آج آخری روز ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید حیات سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوید، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں قائم جو الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونلز ہے اس میں اپیلوں پہ جو ہے وہ سماعت کا آج آخری روز ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں پرنسپل سیٹ پر 6 ججز پر مشتمل جو الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل تھا وہ اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے۔ اب کچھ دیر قبل جو ہے NA 122 سے بانی PTI جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی اس کو خارج کر دیا گیا ہے اور ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو جو ہے برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی اس اپیل پر جو الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل تھا اس نے فیصلہ سناتے ہوئے ان کی اپیل کو جو ہے منظور کر لیا اور انہوں نے الیکشن کے لیے اہل قرار دیا۔ اس کے علاوہ NA 119 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ NA 130 سے میاں محمد نواز شریف کے کاغذات منظور ہونے پر جو اپیل دائر کی گئی تھی اس پر بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اس کے علاوہ SN اقبال کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف جو اپیل ہے اس پر بھی فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ آج کیونکہ آخری روز ہے تو ان تمام اپیلوں پر جو ہے آج جو پرنسپل سیٹس پر 6 ججز پر مشتمل الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل ہے وہ ان پر سماعت کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ نوید ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد کے الیکشن اپیلیٹ ٹرائیبونل میں آج تمام اپیلوں پر سماعت مکمل ہونے کے بعد آخری اپیل پر بھی فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ الیکشن ٹریبونل میں جسٹس ارباب محمد طاہر نے 73 اپیلوں پر سماعت کی۔ تفصیلات بتائیں گے نمائندہ PTV بلال شیخ۔ بلال شیخ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ تمام فیصلے ہو گئے ہیں؟ کہ اسلام آباد میں الیکشن اپیلیٹ ٹریبونل جو ہے یہاں پر آج اس نے جو امیدواروں کی جو اپیلیں تھیں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف ان پر جو ہے اپنی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ 209 امیدوار جو ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے، جس میں سے 116 کے جو کاغذات ہیں منظور کیے گئے تھے، 93 جو ہیں وہ کاغذات مسترد کیے گئے تھے، جن کے خلاف 73 اپیل جو ہیں اسلام آباد الیکشن اپیلیٹ ٹریبونل میں آئی تھیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں انہوں نے اس پر سماعت کی تھی اور اس حوالے سے جو ہے 5 اپیلیں جو ہیں مسترد کی گئی تھیں۔ امیدواروں نے اپنی اپیلیں واپس لے لی تھیں۔ اس طریقے سے 95% سے زیادہ جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ یہاں پر ان کی جو اپیلیں ہیں وہ منظور کر لی گئی اور ان کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے حل قرار دے دیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں جو 73 اپیلیں تھیں الیکشن اپیلیٹ ٹریبونل میں، ان اپیلوں کو نپٹا دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ بلال شیخ، آپ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبونل کی کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت جاری ہے۔ اب تک 300 سے زائد اپیلوں پر سماعت ہو چکی ہے۔ ہماری نمائندہ نورین آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی نورین، آگاہ کیجیے گا۔
जी, आज जो है वो अपीलों पर समाअत का आखिरी रोज़ है और अब तक जो है वो तकरीबन 300 से ज़ायद जो अपीलें दायर हुई थी उस पर जो है वो समाअत हो चुकी हैं और 22 तकरीबन जो है वो केसेस ऐसे हैं जो मुस्तरद किए जा चुके हैं और बाकी मंजूर किए गए इन तमाम दिनों में। और आज के रोज़ जो है चूँकि आखिरी है, 8 केसेस जो हैं वो अभी भी हैं, अपीलें उसकी समाअत जारी है, जिसमें से 2 केसेस निपटा दिए गए हैं। एक PS 61 हैदराबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शर्जील इनाम मेमन की जो कागजात मंजूर हुए थे वो रिटर्निंग ऑफिसर ने मंजूर किए, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील कुनिंदा ने ये अपील दायर की कि वो मंजूर कैसे हो गए, लेकिन उस पर जो है वो अपील कुनिंदा ने खुद ही आज अपनी अपील वापस ले ली, तो उनके कागजात जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। दूसरी अपील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराज़ात लगाए थे, जो उस पर जो है समाअत हुई और वो भी जो है वो कागजात उनके मंजूर कर लिए गए हैं। और आज आखिरी रोज़ है तो अभी मज़ीद जो है 6 अपीलें जो हैं उन पर समाअत बाकी है। जी शुक्रिया नौरीन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं पेशावर का, जहां इलेक्शन 2024 के हवाले से जारी सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। पेशावर में कायम 3 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में आज 16 केसेस ज़ेर समाअत हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद यूसुफजई। सज्जाद, बताइएगा कितने फैसले भी बाकी हैं? उम्मीदवारों की जानिब से जो कैसे अपीलें दायर की गई थी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में, वो उसका आज आखिरी रोज़ है। अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो पूरे सूबे में मजमूई तौर पर 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम किए गए थे, जिसमें से 3 अपीलेट ट्रिब्यूनल पेशावर हाई कोर्ट में कायम किए गए थे। पेशावर में मजमूई तौर पर 170 से ज़ायद अपीलें उम्मीदवारों और दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दायर की गई थी, तो उस पर आज समाअत का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा और आज ही के रोज़ जितने केसेस दायर किए गए हैं उन तमाम पर फैसलों के हवाले से लिस्ट जारी किया जाएगा। आज ही के रोज़ जो जनरल नशिस्तों पर जो उम्मीदवारों और दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अपीलें दायर की गई थी और उस पर जो फैसले थे अपीलेट ट्रिब्यूनल के, वो आज वो सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। और आज ही के रोज़ पेशावर अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो यहाँ आज फैसले मुकम्मल होने के बाद बाकायदा लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें जिन उम्मीदवारों के जो अपीलें हैं वो मंजूर की जाती है और जिनकी मुस्तरद की जाती है तो उसकी मुकम्मल तफसील उसमें मौजूद होगी। जी जी, हमारा मंशूर कमेटी बनी थी, पोर्टल लॉन्च किया गया था। आजकल में मंशूर का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी अरक्रेजी हुई है और हमने अवाम की राय भी तलब की थी उस पोर्टल के ज़रिए, तो एक अच्छा मंशूर आएगा। और मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर थी 21 अक्टूबर की, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मंशूर का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं इस हल्के में उतरा हूँ, लीडरशिप की अप्रूवल के बाद ही उतरा हूँ। हतमी ऐलान पार्टी कर देगी आजकल में, जब भी ऐलान होगा तो इंशाल्लाह ताला अच्छा मुकाबला करेंगे बिलावल साहब का और अपने तमाम हरीफों का, और मुस्बत सियासत करेंगे। तो जो लाडला है वो कभी साइकिल मांगता है, कभी देसी मुर्गी मांगता है, कभी कुछ मांगता है, तो कोई बात नहीं, वीडियो कॉल भी कर ले, साइकिल भी चला ले, मुर्गी भी खा ले, इलेक्शन में उसका कोई दाल नहीं गलने वाली। बहुत शुक्रिया। मेरा आईडी कार्ड कितने में यार ले आओ जी। मेरे दादा जब रिटायर हुए 1995 में सुप्रीम कोर्ट से, तो जी ब्लॉक जौहर टाउन में रिहाइश इख्तियार की। इब्राहिम लकी साहब वहाँ पे आते रहे बचपन से, तो मैं जी ब्लॉक जौहर टाउन का रिहायशी हूँ। मेरे आईडी कार्ड पे जो मेरा मुस्तकिल पता है वो जी ब्लॉक जौहर टाउन का है, और उस ज़माने में वहाँ पे घोड़े दौड़ा करते थे उस जौहर टाउन के अंदर, जहाँ पे अब आज गुंजान आबाद इलाका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मुल्तान के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों की समाअत की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। जी ख्वाजा मोहम्मद कलीम, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, इलेक्शन 2024 के सिलसिले में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए थे उनमें फैसले सुनाए जाने का आज आखिरी दिन है।
मुल्तान में जो 2 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल, यहाँ पर 219 अपीलें दायर की गई थीं, जिनमें से 6 पर फैसला महफूज है जो आज सुनाया जाएगा, और 4 अपीलें ऐसी हैं जिन पर आज कुछ समाअत होना है और जिसके बाद आज इन पर भी फैसला सुना दिया जाएगा। आज जिन 6 अपीलों पर फैसला सुनाया जाना है, जिनका समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था, उनमें अंबर मजीद न्याजी, राना आफ्ताब और खालिद जावेद वड़ाइच की अपीलें भी शामिल हैं। इसके अलावा साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर और उनके भाई मलिक उस्मान डोगर के कागजात नामजदगी जो कि आरओ ने मंजूर कर लिए थे, उनके खिलाफ जो अपीलें की गई थी वो भी मुस्तरद कर दी गई हैं और उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद करीम, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोयटा में उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है और आज समाअत का आखिरी रोज है। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की लिस्टें आवेज़ा की जाएंगी। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे इसरार अहमद से। जी इसरार अहमद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने खिलाफ अपीलों पर समाअत का सिलसिला आज अपने आखिरी रोज में दाखिल हो चुका है, जबकि आज समाअत 4 बजे तक जारी रहेगी। 11 जनवरी यानी कल इन उम्मीदवारों की लिस्टें आवेज़ा की जाएंगी। 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट की जाएंगी। बात करें अगर बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल की, तो कौमी असम्बली की 16 जबकि सूबाई समेत 51 नशिस्तों पर 2600 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराई थी। इसी तरह आरोज की जानिब से 478 उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी पर एतराज़ लगाकर इन्हें मुस्तरद की गई थी, जबकि 405 उम्मीदवारों ने अपने टर्मिनल में इन फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी थी, जिनमें 360 उम्मीदवारों को अब तक इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है। इसी तरह 5 उम्मीदवार ऐसे जिनकी अपीलें मुस्तरद की गई हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इजाज़त पाने वालों में 3 साबिक वज़रा आला बलूचिस्तान भी शामिल है, जिनमें सरदार अख्तर मेंगल, जाम कमाल और नवाब सनाउल्लाह खान ज़री शामिल है। जी शुक्रिया इसरार। खबरों का सिलसिला भी जारी है, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। नौ मई की एक और शरपसंदी की होलनाक वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें मखसूस जमात के डंडों से लैस शरपसंदों को हमलावर होते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में मखसूस जमात के बुलवाइयों की कंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर में हमले के मनासिर दिखाई दे रहे हैं। शरपसंदों ने वासा लाहौर के ट्रक को छीनने के बाद CSD का गेट तोड़ा और पुलिस वैन को भी आग लगा दी। तोड़ फोड़ और आग लगाने के ये मनासिर मखसूस जमात के रियासत मुखालिफ शरपसंदी में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। 9 मई को मखसूस जमात की तरफ से की गई शरपसंदी को मुल्की तारीख में स्याह बाब की हैसियत से याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया कि वो कौन हैं। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि वो दरखास्त गुजार के वकील हैं। चीफ जस्टिस ने PTI वकील हामिद खान से मुखातिब होकर कहा, परसों उन्होंने कहा था कि वो वकील हैं, कल को कोई और वकील आकर ये कह देगा कि उन्होंने दरखास्त वापस नहीं ली थी, तो फिर क्या होगा। हामिद खान ने जवाब दिया कि बल्ले के निशान से मुतालिक मुकदमा पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने दरखास्त गुजार की इस्तदा मंजूर करते हुए दरखास्त खारिज कर दी। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ हुमा मलिक। नाज़रीन, फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गज़ा पर इसराइली हमलों से मजमूई तौर पर 23,210 फ़लस्तीनी शहीद और 59,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली फ़ौजियों ने गज़ा में 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, जिनमें 126 फ़लस्तीनी शहीद और 241 ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं और इसराइली हमलों की वजह से एम्बुलेंस गाड़ियां ज़ख्मियों तक नहीं पहुंच सकीं।
गजा में वजारत सेहत ने कहा है कि बेघर फ़लस्तीनी भूख, ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों का शिकार हैं। दूसरी जानिब लेबनान के एक इलाके में फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के 3 अरकान हलाक हो गए हैं। मगरबी किनारे के इलाके तुलकरम से एक अफसोसनाक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि इजरायली फ़ौजियों ने 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोलियां मारने के बाद अपनी गाड़ियां उन पर चढ़ा दी। इजरायली फ़ौज ने तस्दीक की है कि गजा में जंग के दौरान उसके मज़ीद 9 फ़ौजी भी हलाक हुए और हलाक होने वाले फ़ौजियों की कुल तादाद 187 हो गई है। और पाकिस्तान ने आलमी अदालत में जनूबी अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की जानिब से इसराइल की खिलाफ वर्जियों को नस्ल कुशी कन्वेंशन के तहत बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में लाने के इक़दाम का खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि गजा में इसराइल की जंग एक वहशियाना फेल और फ़लस्तीनियों की हकीकी नस्ल कुशी है। उनका मजीद कहना है कि इसराइल का कत्लेआम रोकने से इनकार और गजा से जबरी नकल मकानी के साथ इंसानी इमदाद की फराहमी में रुकावटें आलमी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने सलामती काउंसिल में इस्लाहात का मुतालबा करते हुए कहा कि सलामती काउंसिल मुस्तकिल अरकान की मज़ाहमत और मनफी वोट की वजह से मफलूज होकर रह गई है। जनरल असम्बली इजलास में मालदीव और नमीबिया ने भी इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त की हिमायत की है। नमीबिया के सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि उनका मुल्क जनूबी अफ्रीका के मामले का खैर मकदम और हिमायत करता है। तुर्की, उर्दन, बोलीविया और मलेशिया पहले ही जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त की हिमायत का इजहार कर चुके हैं। सानहा 9 मई के मौके पर मखसूस सियासी जमात की शरंगेज अफराद ने अस्पताल पर हमला किया और तोड़ फोड़ की। इन शरपसंद अनासिर ने अस्पताल और मुल्क में इंतशार और अफरा-तफरी फैलाकर मुल्क दुश्मन अनासिर के प्रोपेगेंडे को हवा दी। एहतजाज की आड़ में इन दहशतगर्द अनासिर ने अस्पताल पर हमला किया जिस पर ऐनी शाहिदीन ने अपनी राय का इजहार किया। 9 मई को मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासिर ने अस्पताल पर धावा बोल दिया और अस्पताल की अमलाक को नुकसान पहुँचाया। मैं आपको बताता हूँ ना जी कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। ये स्टाफ हमारा इधर खड़े होते हैं हम रोज ही। तो जब 9 मई का वाक़या हुआ तो एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई क़यामत सी आने लगी है। इस बोर्ड पर उन्होंने तो बहुत सारा डंडे छोटे मारे हैं, लेकिन ये सरासर ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है और जो लोग भी हैं इनके तो सज़ा मिलनी चाहिए। जिसका कसूर है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए क्योंकि ये तो गलत एक्ट है। जिसने भी किया है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको इब्रतनाक सज़ा दें। इन्होंने बहुत गलत किया जी, जो कुछ भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क है, अपना मुल्क है हमारा। 9 मई का जो वाक़या हुआ है इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं तो उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, उनको चौक में लटकाएं। बिल्कुल जो लोग मुलव्वस हैं इसमें कि जिन्होंने किया हॉस्पिटल के ऊपर जो भी इस तरह हमला किया या नुकसान पहुँचाया चीज़ों को, उन्होंने बहुत गलत किया। तो जो नामजद हैं, जो इसमें शामिल थे, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने एक हमला भी तोड़ा है उसने गलत किया है। मुल्क ही हमारा है, फौज हमारी है, हॉस्पिटल हमारे हैं। जो भी इस तरह का कोई काम करता है गलत करता है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादती की है, बहुत बुरा किया, उन्होंने अच्छा नहीं किया। अपना हॉस्पिटल है हमारा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादती की है। दीगर खबरों में आपको आगाह करें कि काहिरा में पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और सिंगल कंट्री नुमाइश का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज और मिस्र के वज़ीर तिजारत अहमद समीर ने किया। नुमाइश में पाकिस्तान की 100 से ज़्यादा कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका के ममालिक से 180 से ज़्यादा ताजिर भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इफ्तिताही खिताब में डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिस्र और शुमाली अफ्रीका के ममालिक के साथ बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में मिस्र के वज़ीर तिजारत अहमद समीर और पाकिस्तानी सफ़ीर साजिद बिलाल ने भी खिताब किया। पाक कतर मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क ज़लज़ाल 2 का कतर में आगाज़ हो गया है। मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क में पाक फ़ज़ाइया और कतर अमीरी फ़ज़ाइया शरीक हैं। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक सन 2020 में शुरू होने वाली फ़ज़ाई मश्क ज़लज़ाल 2 कतर की मेज़बानी में मुनक्किदा दूसरी फ़ज़ाई मश्क है। ज़लज़ाल 2 दुनिया की पेचीदा तरीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्कों में से एक है। फ़ज़ाई मश्क से दोनों इत्तेहादी ममालिक के माबैन मुश्तरका तरबियत और बाहमी ताअवुन को फ़रोग़ दिया जा सकेगा। तर्जुमान के मुताबिक मश्क ज़लज़ाल 2 हकीकत पसंदाना फ़ज़ाई जंगी मंजरनामे की अक्कासी करते हुए शरीक फ़ज़ाई अफ़वाज को अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को हकीकी बुनियादों पर जांचने का मौका फराहम करेगी।
फ़ज़ाई मशक़ का मकसद मुश्तरका मनसूबाबंदी के तरीक़ाकार को असर हाज़िर के अस्करी तकाज़ों से हम आहंग करते हुए मज़ीद बेहतर बनाना है। मशक़ को दोनों बिरादर ममालिक के माबैन मौजूद दिफाई शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने में भी तारीख़ी अहमियत हासिल है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मशक़ में एक पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारे पहली बार एक फ़ज़ाई मशक़ में कतर अमीरी फ़ज़ाइया के यूरोफाइटर तैयारों के मद्दे मुकाबिल अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से कलील मुद्दत में J-10C लड़ाका तैयारों की शमूलियत, उनकी ऑप्शनलाइजेशन और एक और बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशक़ में उनकी शिरकत एक काबिल ज़िक्र कामयाबी है। तर्जुमान के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया की ये कामयाबी सरबरा पाक फ़ज़ाइया के पाक फ़ज़ाइया को जिद्दत से हमकिनार करने के विजन का अमली सबूत है। इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार की सस्ती शोहरत के हथकंडों में इजाफा हो गया है। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया कई साल खामोश रहने के बाद अचानक नमूदार होकर मोदी प्रोपेगेंडे का आलाकार बन गया। इनके मुताबिक अभिनंदन की पाकिस्तान में गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक जिस फौज ने दिन दिहाड़े भारत में घुसकर इसके 2 जहाज में मार गिराए हों, उसका डर के मारे अभिनंदन के रिहाई का दावा मुज़हिका खेज है। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय कैदी को रिहा किया था। भारत ने अपने हमले में 300 दहशतगर्दों के हलाक होने का दावा किया, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट ने भारतीय बम खुली जगह पर गिरने का इंकशाफ किया। इस पर मजीद बात करने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे राना शहजाद से। राना शहजाद, अपडेट कीजिएगा, क्या खबर है आपके पास इस हवाले से मजीद? जी हुमैरा, इंतखाबात करीब आते ही इंतहापसंद मोदी सरकार की भारत में सस्ती शोहरत के हथकंडों में इजाफा हो गया है। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर ने भी पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को भी भोंडे तरीके से मोदी की कामयाबी करार दे दिया है। हैरान कौन तौर पर अजय बिसारिया की कई साल खामोश रहने के बाद अचानक नमूदार होकर मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे का जो आलाकार बनना है वो बड़ा ही नहायत ही हैरान कुन है। भारतीय जो पायलट थे अभिनंदन की पाकिस्तान में गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। अजय बिसारिया के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी को बारहा काले की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। अजय बिसारिया ने यह भी प्रोपेगेंडा किया कि भारतीय प्रोपेगेंडे का ये मकसद आने वाले इंतखाबात में मोदी सरकार की तरफ से कामयाबी हासिल करने का एक ये भोंडा तरीका भी है। भारतीय तजज़ियाकारों के मुताबिक जिस फौज ने दिन दहाड़े भारत में घुसकर उसके 2 जहाज मार गिराए हों, उसका डर के मारे अभिनंदन की रहाई का दावा नहायत मज़ाक़ खेज है। दफाई माहिरीन ने भी भारतीय सफारतकार अजय बिसारिया के इस दावे को जो है वो मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय कैदी को रहा किया था। मोदी सरकार माजी में भी झूठे दावे कर चुकी है जिनको आलमी मीडिया और माहिरीन बेनकाब कर चुके हैं। भारत ने अपने हमले में 300 दहशतगर्दों के हलाक होने का दावा किया, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट ने भारतीय जो प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब करते हुए कहा कि भारतीय बम सिर्फ खुली जगह पर गिरे, इसमें कोई हलाकतें नहीं हुई। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के बाद भारत ने पाकिस्तानी F-16 त्यारा मार गिराने का भी झूठा दावा किया था। झूठे भारतीय दावे को अमरीकी जो दिफाई अदारा है पेंटागन, उसने भी इस भारतीय दावे को झुटला दिया था। भारत के रात की तारीकी में हमले का पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में वाज़ेह जवाब दिया, जिसको दुनिया भर के दफाई माहिरीन ने न सिर्फ वाच किया बल्कि इस पाकिस्तानी दावों की तस्दीक भी की। भारत ने खुले इलाके में बम गिराए, लेकिन दावा दहशतगर्दों के कैंप पर स्ट्राइक का किया था। दफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय हमले के बरक्स पाकिस्तान का जवाब नहायत करारा, नपातुला और दावे के ऐन मुताबिक था। मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सीतापाल मलिक, कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और कई दूसरे भारतीय रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने पुलवामा हमले के जाली होने का इंकशाफ कर चुके हैं। प्रशांत भूषण, ममता बनर्जी और रवेश कुमार भी पुलवामा ड्रामे का इल्ज़ाम मोदी सरकार पर लगा चुके हैं। हालिया ड्रामे और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताही तकरीब का मकसद आम इंतखाबात से कबल मजहबी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर मोदी सरकार भारत में अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। जी
बहुत शुक्रिया राना शहजाद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब मौसम की सूरत हाल। अस्सलामुअलैकुम, खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद तरीन सर्दी की लपेट में आ चुके हैं, जहाँ दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर चुका है और मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अजीज़ मरी से। जी अजीज़, आगाह कीजिएगा, सर्दी ने किस हद तक मामलात ज़िंदगी मुतासिर किए हैं? जी बिल्कुल, वादी कोयटा इस जो है खुश तरीन सर्दी की लपेट में आ चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो शुमारी इलाके जिनमें ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफला, खानूज़ई, मुस्लिम बाग, कार मैतरज़ई, वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमात से जो है गिर चुका है। गुज़श्ता दिनों जो है इन शहरों, इन इलाकों के जो पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से जो मामला ज़िंदगी जो है मुतासर हो गई है और इस वक्त जो है वहाँ पे सरतरीन हवाएं जो है चल रही हैं। जबकि अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा का जो दर्जा हरारत है इस वक्त जो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त जो कलात में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। कलात का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जा पहुँचा है। इस तरह अगर हम साहिली इलाकों की बात करें तो साहिली इलाकों में जो मौसम खासा खुशगवार है। मैदान इलाकों में इस वक्त भी जो है धुंध छाई हुई है, तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और वहाँ का जो मामूलात ज़िंदगी है जो मुतासर हो चुका है और सर्दी की जो लहर है वो बरकरार है। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि शिमाली इलाका जात और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। ताहम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मॉग छाई रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे लेह की, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -9, काला -7, गोपिस्त -6, जबकि गिलगित में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।